Welcome students. In my last video I had started to discuss something about Anne Frank. I had also discussed that Anne had written a diary which became the most famous diary in the world. The name of the diary is The Diary of a Young Girl. Before writing the diary, Anne provides a brief sketch of her life in which she says that she has the most adorable father, mother and a sister Margot. Here you can watch in the picture on the top by the left side, the picture is of Anne's father, Otto Frank. On the right side, her mother, Edith Frank. In the bottom by the left side, this is the picture of Margot Frank, who was her elder sister, 3 years older than Anne Frank. In the last, you must have identified as it is the picture of Anne Frank. Let us start the third paragraph of page number 51. Before that, we had already read about Anne Frank that she says that in 1933, her father and mother both went to Holland in the month of September. After them, Margot, her sister, went there, and then by the next year in the month of February, Anne Frank also went to Holland. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. Montessori की स्कूल अनी कहती है कि ठीक से पढ़ाई शुरू हो गई. मैं 6 साल की उम्र तक वहीं थी और तब तक मैं 6th क्लास में चली गई थी. In the 6th form, my teacher was Mrs. Kupress, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. 6th क्लास में इसकी टीचर जो थी उनका नाम था मिसेज क्यूप्रस. उनसे काफ़ी अटैचमेंट था एने फ्रैंक को. वो केवल टीचर ही नहीं बल्कि हेड मिस्ट्रेस भी थी. जब 6th क्लास में उनका फेयरवेल हो गया, वहाँ से पूरा हो गई एने की पढ़ाई वहाँ पूरी हो गई, तो दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए, एने भी और उसकी टीचर मिसेस क्यूप्रस भी फेयरवेल के समय. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. इसके फादर के बाद एनी की ज़िंदगी में अगर सबसे अधिक कोई प्यारा था वो उसकी ग्रैंड माँ, और बच्ची थी इसलिए बर्थडे से भी काफ़ी लगाव था. तो वह कहती है कि 1941 के समर सीजन में इसकी ग्रैंड माँ बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी, इसलिए उस साल का बर्थडे मेरे साधारण तरीके से बीत गया. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. कोई नहीं जानता है कि मैं अपने ग्रैंडमा को अभी तक कितना प्यार करती हूँ, और 1942 का बर्थडे भी पिछले बर्थडे को मात्र मेकअप करने के लिए ही था, और दादी माँ का भी एक कैंडल और कैंडल्स के साथ जलाया गया. The 4 of us are still doing well, and that brings me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तब से हम 4 अच्छी तरह हैं, और आज 20 जून 1942 को मैं अपने आप को पूरी तरह इस डायरी को समर्पित कर रही हूँ. This is the picture of one of Annie's schools. And this is the Montessori school. You have to see where Annie is. Now in this chapter there is a description of an event of school which Annie has discussed in her diary. At first there is the date Saturday 20 June 1942. This is the page of diary. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. पूरा क्लास बहुत डरा समा हुआ था. Quaking in its boots means सहम जाना डर से. तो डर के समा हुआ था क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला था. वो टीचर्स की जो मीटिंग हो रही थी उसमें निश्चय होना था कौन स्टूडेंट इसी क्लास में रह जाएगा, कौन अगली क्लास में जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. करीब आधी स्टूडेंट क्लास के शर्त लगा रहे थे. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us.
अपने एक फ्रेंड के बारे में, क्लासमेट के बारे में कहती है जिसका नाम था जीएन। जीएन और मैं दोनों को काफ़ी हंसी आ रही थी अपने पीछे बैठे दो लड़कों की मूर्खता पे। सीएन एंड जैक्स, उन दोनों लड़कों में से एक का नाम था सीएन और दूसरे का जैक्स, हु वे स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, क्योंकि उन्होंने अपनी छुट्टी की सारी सेविंग शर्त में ही लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से शाम तक बस उनके बीच यही हो रहा था, तुम पास होने जा रहे हो, मैं नहीं, नहीं नहीं तुम पास होने जा रहे हो। एवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, बल्कि जी की निवेदन करती हुई उसकी दृष्टि या फिर मेरी गुस्से से भरे हुए शब्द भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगी कि करीब 1/4, 1/4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, टीचर्स के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पे टीचर्स सबसे ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। I am not so worried about my girlfriends and myself. We shall make it. मुझे अपने विषय में, अपनी गर्लफ्रेंड्स के विषय में ज़्यादा चिंता नहीं, हम लोग पास हो जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths. यानी एक सब्जेक्ट के विषय में कहती है कि उसे संदेह है और वो सब्जेक्ट है मैथ। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose her. खैर जो भी हो, बस अब एक ही काम करना था, इंतज़ार करना था, तब तक हम लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Casey, the old Fozzie who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. अब एनी पीछे जाती है बैक में और अपने स्कूल के विषय में बातें करती है और बताती है कि मुझे सभी टीचर्स से अच्छा व्यवहार मिलता था। करीब 9 टीचर्स थे जिसमें 7 मेन थे और 2 वुमेन थी। मिस्टर केसी, जो कि पुराने दकियानुसी विचार वाले थे, वे मुझे मैथ पढ़ाते थे। वो अक्सर मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं क्लास में बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। वो मुझे नाराज़ होकर पहले तो चेतावनी देते थे, उसके बाद मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे एक पनिशमेंट के रूप में। जैसे पनिशमेंट में पहला टॉपिक ऐसे का था ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप ही बताओ आप इस पर क्या लिख सकते हो। और वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टैक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब मैंने सोचा कि बाद में इस पर मैं सोचूंगी, ऐसा मैंने निश्चय किया। फिर मैंने लिखा उस टाइटल को अपने नोटबुक में, फिर उसे अपने बैग में डाला और शांत रही। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया तो उस एसे का ध्यान आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. वो फाउंटेन पेन के अपने पिछले हिस्से को वो मुंह में अपना चबा रही थी और मुंह में डालकर कुछ सोच रही थी। जनरल ऐसा होता है, ट्रेट होता है, लोग जनरली कुछ सोचने के लिए कुछ ऐसा ट्रेट, अपनी ऐसी आदत मेंटेन करते हैं और वो शो करते हैं। एनी भी कुछ ऐसा ही वो सोचने के कुछ इसी अंदाज में वो सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. एनी कहती है कि जनरल अगर किसी और को मिलता तो जनरली लोग क्या करते, ये व्यर्थ की इधर उधर की बातें करते, दो वर्ड्स के बीच गैप छोड़ देते, स्पेस दे देते ताकि पेज जल्दी भर जाए। लेकिन एनी को हमेशा कुछ विशेष करना चाहती थी, इसलिए वो सोचती है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिससे मैं उन्हें विश्वास दिला सकूँ कि मेरे लिए बातें करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं बहुत सोची और अचानक मुझे एक विचार आ ही गया।
I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज लिख डाला उस टॉपिक पे जो मुझे मिस्टर केसिंग ने दिया था और मैं संतुष्ट हो गई। अब सवाल है कि आखिर एनी ने क्या लिखा कि वह संतुष्ट हो गए। I asked that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने ये लिखा कि बातें करना बच्चों के का गुण होता है, स्टूडेंट्स का गुण होता है और मैं फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण बनाने की कोशिश करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बातें करने की आदत मेरी माँ को भी है, मुझसे ज़्यादा नहीं, कम से कम मेरे जैसे तो हैं ही। और आप तो जानते ही हैं कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं उसे तो पूरी तरह बदला नहीं जा सकता है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। मिस्टर केसिंग ने जब मुझे पढ़ा, इस मेरे द्वारा लिखे गए इस एसे को पढ़ा तो उन्हें हंसी आई। फिर मैं शांत रही, लेकिन जब अगले लेसन में फिर मैंने बातें करना शुरू की तो वे नाराज़ हो गया। फिर मुझे एक दूसरा टॉपिक असाइन किया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इस बार के टॉपिक का टाइटल था एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, एक असाध्य बातूनी, ऐसी बात करने वाली जिसे बदला ना जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उसे लिखा, उन्हें हैंड ओवर कर दिया। फिर अगले 2 लेसन तक उन्हें कोई भी कंप्लेन करने का मैंने अवसर ना दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। एनी फ्रेंड एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। लेकिन तीसरे लेसन में फिर मैंने बातें करना शुरू किया तो मिस्टर केसिंग काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने गुस्से में मुझे एक बड़ा रिडिकुलस टॉपिक दिया और वो टॉपिक था क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो बड़ा हास्यास्पद ये विषय था जिसे सुनकर द क्लास रोअर्ड, क्लास के सभी लोग हंसने लगे, सभी विद्यार्थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एक्सॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, जबकि मेरी जो प्रोफिशिएंसी थी इस टॉपिक पर लिखने की, जो प्रवीणता थी, वो मैंने अपनी सारी प्रोफिशिएंसी दे चुकी थी पहले के 2 टॉपिक पर। एक तरह से थक सी गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एज, समथिंग ओरिजिनल। लेकिन अने कभी भी पीछे नहीं हटती थी, वो थक कर हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर निश्चय किया कि इस बार कुछ अलग करूँगी, कुछ स्वाभाविक करूँगी। माई फ्रेंड सनी सेन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. एक और क्लासमेट की बात करती है जिसका नाम सेन है, वो अच्छा पोइट्री लिखती थी। तो उसने कहा कि वो उसके पोइट्री को, वो जो कुछ भी टॉपिक लिखेगी उसे काव्य में बदल देगी, एक पोइट्री में, वर्स में। मिस्टर इसे सुनकर अने बहुत खुश हो गई, खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस टॉप सब्जेक्ट, बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर केसिंग मुझे ऐसा टॉपिक देकर मेरा मजाक बनाना चाहते हैं ना, लेकिन ये मजाक में उन्हीं पे भारी पड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने पोएम को लिख लिया, वो वास्तव में अच्छा था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वाक्ड टू मच। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो मैंने पोएम को ख़त्म किया, ये अच्छा था। पोएम में अब क्या था, पोएम में एक मदर डक थी, फादर स्वान थे और उनको 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हंस ने इसलिए उन्हें मार डाला क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे। मिस्टर केसिंग ने इस जोक को राइट वे में लिया। ही read द पोएम to the class, adding his own comments and to several other classes as well. मिस्टर केसिंग ने इस पोएम को क्लास में पढ़कर सुनाया, अपने कमेंट को भी उसमें ऐड किया और साथ ही दूसरी क्लासेस को भी जाकर उस पोएम को सुनाया।
Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद से मुझे अलाउ किया गया, मिस्टर केसिंग के द्वारा बातें करने की इजाज़त मिल गई और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क इसके लिए असाइन नहीं किया जाने लगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर केसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. इतना ही नहीं, इसके विपरीत मिस्टर केसिंग बदल गए हैं. अब वो हमेशा, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा मजाक करते दिखते हैं इन दिनों. योर सैने. एनी, और एनी कहती है अपना नाम लिखकर डायरी की स्पेस को इंड करती है. इन दिस वे वी हैव completed दिस चैप्टर टुडे. You have to frame short questions with their answers within the chapter. In my next class, I will give you some guidelines to give the perfect answers of the given questions. Thanks a lot, students.